कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ನಿನಗೆ ಶರಣೋ ವಿನಾಯಕ ಶರಣೋ ನಿನಗೆ ಶರಣೋ ವಿನಾಯಕ ಪದುಮನಾಭ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಉದರಿ ನಿವಾಸ ಉರಗ ಶಯನ. Invite my friend Ponanda to say the thought for the day. Good morning. Thought for the day. History is not just about past, it is a guide for the future. Thank you. Today's news, the headlines. CWMA upholds order on Kaveri water released to Tamil Nadu. महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् We come gathered to honor the sacrifices of the great emperors Ashoka and Prithviraj Chauhan. Ashoka the Great was a famous Indian emperor of the Mauryan dynasty who ruled from 268 to 232 BCE, promoted Buddhism and shifted from violence to peaceful reign based on moral law. Emperor Ashoka's mother was named Subhadrani. She was one of the 16 wives of King Bindusara. गरज बरस तुम धूप में
कलिंग के महासागर में दया नदी के किनारे भारी भरकम श्रेणियों से घिरे युद्ध क्षेत्र में भीषण रक्तपात और नरसंहार देख एक बार महाप्राण भी कांप उठा। रक्त से युद्ध भूमि ही नहीं, दया नदी का पानी भी लहूलुहान हो गया। विश्व विजय का सपना देखने वाले चक्रवर्ती सम्राट अशोक, कलिंग के किले पर अपनी विजय पताका फहराने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मैं किसी स्त्री से युद्ध नहीं कर सकता। स्त्रियों पे वार करना युद्ध के नियम के खिलाफ है। सम्राट अशोक, क्या कहा तुमने? तुम किसी स्त्री से युद्ध नहीं कर सकते, परंतु युद्ध में अपनी विश्व विजयी होने का सपना पूरा करने के लिए लाखों बेगुनाहों की जान ले सकते हो। धिक्कार है तुम पर सम्राट अशोक, धिक्कार। सम्राट, मेरा कुल कुटुंब सब मारे गए। संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं आपसे जीवन नहीं, मृत्यु मांगता हूँ। महाराज, मुझे मृत्यु दे दो, मुझे मृत्यु दे दो महाराज, मुझे मृत्यु दे दो। युद्ध का ये भयानक परिणाम देख अशोक का दिल दहल उठा। युद्ध क्षेत्र की सारी दुनिया उसका पीछा कर रही थी। अशोक अभी अपने विचार मंथन से संघर्ष कर ही रहा था कि उसके सम्मुख उसे कमजोर करता हुआ उसका अपना प्रतिरूप व्यंग बाणों की वर्षा करने लगा। विश्व विजय चक्रवर्ती सम्राट अशोक, कलिंग विजय का उत्सव मनाओ। अनेक निर्दोष और बेगुनाहों की बलि लेने वाले महाराज, खुशी मनाओ। सुन रहे हो ना, विधवा स्त्रियों की, अनाथ बच्चों की रुदन। अब यही रुदन तुम्हारा विजय गान बनेगा। विजय गान। तुम अभी जीते नहीं हो, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, तभी तुम्हारी विजय होगी और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। नहीं नहीं, मैं हत्यारा नहीं, मैं पापी नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। विश्व विजय का सपना देखना क्या गुनाह है? यह तो हर सम्राट की आकांक्षा है, उसका कर्तव्य है। मैं सम्राट अशोक कभी पापी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, कभी पापी नहीं बन सकता, कभी नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। Adopted from the lion capital of Ashoka, a 250 BCE sandstone sculpture originally erected on top of Ashoka pillar in Sarnath, Uttar Pradesh. Flat, taken directly from the base of the same Sarnath lion capital. The 24 spokes represent the 24 hours of the day. The word Satyameva Jayate, truth eram triumph. The connection, while the same originates from the ancient Mundaka Upanishad, it is inscribed in the Devnagari script right at the base of the Ashoka lion capital. The Sarnath capital. He is the famous lion monument.
featuring 4 Asiatic lions standing back to back. The national symbol. In 1950, modern India officially adopted this Ashoka lion sculpture as its state emblem. ಮನೆ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸಬಾರದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನ, ಆಭರಣ, ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಗುಡಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶೂರ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಅಜ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಆಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮ ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಅಪಾರ ಶೌರ್ಯ, ಅದ್ಭುತ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದರು. ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುರಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಧೈರ್ಯ, ನ್ಯಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇಂದಿಗೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे गोकुल में हो मोहन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे गोकुल में हो मोहन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे लंका में दशानन, ऐसा एक पृथ्वीराज जैसे रावण को राम सतावन। हरि हर हरि हर हरि हर 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 पृथ्वीराज, हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर जीरो राज पृथ्वीराज। हरि हर हरि
लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। सुल्तान, माफी चाहता हूं लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने जमाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। ಅಜ್ಮೀರ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿಯು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। राजपूत है राजपूत, हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೋರಿ ಅವರ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಯೋಧರು ಅಪಾರ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗಳ ಝಣಝಣ, ಕುದುರೆಗಳ ಓಟ ಮತ್ತು ವೀರರ ಗರ್ಜನೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಭಯಾನಕ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होता है। गौरी पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाए माफी की भीख मांगता है। पृथ्वीराज, मैंने दिल्ली पर आक्रमण करने की जो गुस्ताखी की उसके लिए मुझे माफी दो। कहते हैं कि हिंदुस्तान के सुल्तान दुश्मनों को भी माफ करने का हृदय रखते हैं। तुमने ठीक सुना है, हम निहत्थे पर गौर नहीं करते, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि दोबारा आंख उठाकर भी भारतवर्ष की तरफ नहीं देखोगे। खुदा की कसम सुल्तान, खुदा की कसम, मैं भारत को कभी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। महाराज, वैसे तो मैं राजकवि हूं, फिर भी मुझे लगता है कि गौरी को क्षमा नहीं बल्कि मृत्यु दंड देना चाहिए। मृत्यु दंड। चंद्र प्रताप, आप राजकवि के साथ साथ हमारे मित्र भी हैं। हम आपके सुझाव का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इस तरह क्षमा दान पाकर मोहम्मद गौरी ಗಜ್ನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹಲವು ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕನೌಜಿನ ರಾಜ ಜಯಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन करें। उस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर भारत के सभी सम्राटों को निमंत्रण दिया जाए। चढ़ा वो वीरा प्रेम
तो वे अपने पिता के पास जा रही है। पिताश्री, मैं दिल्ली की शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना वर मान चुकी हूँ, अतः हमें स्वयंवर में आमंत्रित करना होगा। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं अपने शत्रु के साथ तुम्हारा विवाह कभी स्वीकार नहीं करूंगा। पिता से अस्वीकृति मिलने पर संयोगिता ने गुप्तवश सखी के पति के हाथों पृथ्वीराज चौहान को प्रेम प्रस्ताव के साथ स्वयंवर में आने का निमंत्रण पत्र भिजवा दिया। महाराज की जय हो। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता ने अपने स्वयंवर हेतु आपको निमंत्रण पत्र भेजा है। राजकुमारी संयोगिता को सूचित करो कि हम अवश्य आएंगे। तैयारी हो रही है। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर द्वार पर खड़ा कर दो, ताकि सब जान सके कि पृथ्वीराज चौहान हमारा द्वारपाल है। हमें भी सूचना मिली है कि आपके अपमान के उद्देश्य से जयचंद ने आपका पुतला बनवाकर द्वारपाल के रूप में लगवाया है। हम इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में हम अवश्य जाएंगे। ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯೋಗಿತದಂದು ರಾಜರುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ये प्रतिमा मुझे पृथ्वीराज चौहान की है, जिन्होंने अपने वकील में स्वीकार कर चुकी हूँ। मेरी प्रतिमा को जयमाला देना है, अतः ये मेरी पत्नी हुई। इस अधिकार से मैं इन्हें ले जा रहा हूं। यदि किसी सम्राट में साहस हो तो मुझे रोक ले। पृथ्वीराज चौहान ने भरी सभा में हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। अपमान का बदला हम बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी लेंगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन हम अकेले पृथ्वीराज चौहान का सामना नहीं कर सकते। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, वो है गजनी का सुल्तान मोहम्मद कौरी। मैं कौरी के साथ संधि कर पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर दूंगा और दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही हमारा संधि का प्रस्ताव। ಸಂಧಿ ಮಾಡಲು ಗಜ್ನಿಯ ರಾಜನಾದ ಗೋರಿಯರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. कन्नौज के महाराज जयचंद आपकी वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करें। हमारी सेना आपके साथ है, सारी दौलत आपकी होगी और दिल्ली का सिंहासन महाराज जयचंद का। सम्राट जयचंद से कहना कि उनका प्रस्ताव हमें मंजूर है। वो दिल्ली कूच की तैयारी करें। कितना ही बलवान क्यों ना हो, फूट इंसान को कमजोर बना देती है। इनकी आपसी फूट का मैं पूरा फायदा उठाऊंगा। पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी, मेरी। अब गजनी सोने की क्रिया कहलाएगा। ಗೋರಿಯು ಜಯಚಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಂದು
ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಯ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನನ್ನು ಬಂದಿ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಗಜ್ನಿಯತ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. महाराज, सूचना मिली है कि कन्नौज के राजा जयचंद से संधि का गौरी में दिल्ली का हमला बोल गया है। क्या जयचंद ने गौरी से संधि कर ली? दुश्मन को तो एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोही को नहीं। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हमने अपना वचन निभाया, अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना संभव ही नहीं था। तुम्हें तो जरूर इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बनाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहां विजय मेरी वजह से नहीं है। तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। जयचंद, मुझे ये विजय तुम्हारी आपसी खोट से मिली है, समझे? जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है, वो हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काटकर बीच चौराहे पर लटका दो और लिखकर टांग दो। गद्दार जयचंद। गौरी जयचंद को चौराहे के बीच मरवा देता है और दिल्ली की सारी दौलत लौटकर पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी लौट जाता है। दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज हमारे सामने संजीवनी चक्रा बंदी बनकर खड़ा है। पृथ्वीराज, मैं भी तुम्हें माफ कर सकता हूं यदि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। मैं पृथ्वीराज चौहान हूं। गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। दुष्ट बंदी बना खड़ा है, फिर भी हमें आगे दिखाता है। अपनी एक घोर निगाहों को नीचे कर। गौरी, क्या तो जानता नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे आती हैं। सैनिकों, जिन आंखों से यह हमें घूम रहा है, उन आंखों को गर्म सलाखों से भर दो। इतनी आसानी से मृत्यु दंड नहीं देंगे। इसे बंदी गृह में डाल दो। इधर दिल्ली में पृथ्वीराज के राजकवि चंद बरदायक ने सम्राट के दुख भरी खबर सुनकर चकित हो गए। मैं अपने मित्र को मरने नहीं दूंगा, मैं उनकी जीवन रक्षा के लिए गजनी जाऊंगा।
बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी। क्या तुम भूल गए कि इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें सिंहाबाद माफी की भीख दी थी? भीख सैनिकों, बंदी पकड़कर इसे भी उसके मित्र के साथ बंदी गृह में डाल दो। जीवन में गौरी को सिंहाबाद माफ करके करा देखी। मुझे अभी भी यदि एक अवसर मिल जाए तो मोहम्मद गौरी का वध कर दो। सुना है सुल्तान तीरंदाजी के खेल का आयोजन करा है जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया, इसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्द विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। हमें यह अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चंद्र बताए तुमको देख के हमारी आंखें खोल दी गई है। ऐसे में ये राशि कैसे संभालेंगे? हम लोग खुद हो जाएंगे। सिपाही, हम सरकार से तीरंदाजी खेल के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। मेरा ये संदेश शीघ्र सुल्तान को पहुंचाओ। गौरी की अनुमति पाकर चंद्र बताए को दरबार में पेश किया जाए। सुल्तान, आपने जो तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया है उसमें मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान भी हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या एक अंधा तीरंदाजी करेगा? आपने पृथ्वीराज का एक कर्तव्य देखा है कहा है, आंखें न होने के बाद भी वे अच्छा निशाना लगा सकते हैं, आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं। असंभव, असंभव। ऐसा देकर स्वयं देख लीजिए। ठीक है, उसकी मौत से पहले उसका यह हुनर भी देख लेंगे। और यदि पृथ्वीराज चौहान का निशाना चूक गया तो उसके साथ तुम्हें भी मौत की सजा मिलेगी। समझे? मुझे मंजूर है। गौरी को परास्त करने का आपको एक सुंदर रास्ता मिला। आप शब्द एक करामत। इस खेल में आप कभी पर बाण न चलाकर गौरी पर बाण चलाते, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहां बैठा है? यदि तो पहले मैं बताऊंगा कि गौरी कहां बैठा है और आप मेरे शब्दों के आधार पर गौरी पर तीर चला देना। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्र बदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। सुल्तान, तवे से निकली आवाज सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर तीर चलाएंगे, लेकिन सुल्तान आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। तीर चलाओ पृथ्वीराज चौहान। हे पृथ्वीराज कमान बांध, है अंतिम अवसर यही। एक बाण से लक्ष्य भेद कर मत चूके चौहान। 4 बार 20 गति अमृत अष्ट प्रमाण, आओ पर सुल्तान है, मत चूके चौहान। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया चंद्र बदाई, मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। होने से अच्छा तो मृत्यु योग है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज चौहान की शान के खिलाफ है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रदाई ने योजना बनाई थी कि गौरी को मारने के बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु हम अपने प्राण त्याग देंगे। अतः दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। Class 9, I extend a heartfelt thanks to everyone who made our assembly successful. We are deeply grateful to our respected management, headmistress, coordinators, teachers and all the non-teaching
staff for making our assembly joyful and successful. And I also thank to the background members for their flawless work behind the scenes. Last but not the least, I thank to all our amazing audience for your encouraging presence. Thank you so much. Have a great day ahead.